welcome back. So welcome to the course of Electrical Machine 1. So far we have discussed the basic construction principle and the type of DC generator, the voltage build-up concept in DC shunt or series generator. Today we will discuss a very important topic, that is the armature reaction. Okay. So what armature reaction is? It's basically the effect of the magnetic field produced by armature current to the main field flux. Okay. So it's basically the effect of armature flux to the main field flux. So what is it? It's the effect of armature flux to the main field flux. Okay. So it has basically two effect. The armature reaction effect is the demagnetizing effect, and it has a cross magnetizing effect that we will discuss later. Okay. So here we have demagnetizing effect. The demagnetizing effect will weaken our main field flux basically. Okay. It will reduce our main field. So in turn it will reduce your terminal voltage. The terminal voltage will reduce. Okay. And the second effect is your cross magnetizing effect. Cross magnetizing. The cross magnetizing effect causes sparking at the brushes. Sparking at brushes. So these are the effect of this armature reaction, the effect of this armature flux on the main field flux. So generally our main field flux, if there is a no load, suppose there is a no load, then your field flux, there will be only the field flux in the machine. Okay. But if the load is connected, then what will happen? Then the armature current will flow, and that armature current will produce its own flux, that is the armature flux. And this armature flux will distort your main field flux, that is the armature reaction. Okay. So let's discuss the mechanism, how this armature flux is affecting the main field flux. Okay, let's see in the first diagram we have North Pole, South Pole. This is the magnetic neutral axis and GNA. GNA is your geometric neutral axis. This is the axis between the pole. This is fixed, and this is your Q axis. Okay. And this is your D axis or polar axis. Okay. So these axes are fixed, but this MNA, the magnetic neutral axis, it is the axis perpendicular to the distribution of main field flux. Okay. जैसे जैसे आपकी मेन फील्ड फ्लक्स रहेगी उसके परपेंडिकुलर होगा, जहाँ पे आपका EMF इंड्यूस्ड जीरो होगा. इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हमारे ब्रशेस जो है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे रहें, ताकि हम स्पार्कलेस करंट कलेक्ट कर सकें. ओके. सो दिस MNA विल बी द परपेंडिकुलर टू द main field flux. Okay. So at no load, then there is a no armature flux. So
our main field flux distribution will be like this. Okay, main field flux distribution will be like this, and MNA will be perpendicular to the main field flux, will be here. Okay, now let's separately discuss the effect of armature flux only. How the armature flux distribution is. So suppose it is here armature. It is your armature. So here we discussed earlier that in north the induced EMF will be negative, in south it will be positive. Current direction it will be the inside the paper. Here in south pole the current direction will be outside the paper. Okay, so what will be the flux distribution from right hand thumb rule? Inside the paper current direction, flux will be like this. Okay. So flux will be like this. Okay. Here outside the paper, flux will be like this. Okay. So this is your armature flux distribution only. Okay. Now let's draw them at the same diagram. Okay. यहाँ हम पहले कर लेते हैं, ये हमारा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज आवर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब इसमें ड्रा करते हैं आर्मेचर फ्लक्स, ये दिस वन. So armature distribution is like this. It will be like this. So if you draw both the field distribution together, what will you see? Here at this leading pole tip, the name leading and trailing we have decided by the direction of rotation of the rotor. So in the direction of rotation of the rotor, the first pole tip will be your leading pole tip and the subsequent trailing, leading, trailing. Okay, so at the leading pole tip, what do you see? The armature flux is cancelling out the main field flux. Direction is opposite. Main field flux हमारे इस डायरेक्शन में, आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है. ठीक है. ट्रेलिंग पोल टिप में क्या हो रहा है? दोनों सपोर्ट कर रहे हैं. फिर मेन फील्ड फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में है और आर्मेचर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है. ठीक है. तो अगर सैचुरेशन कंसिडर ना करें हम, ठीक है, सैचुरेट नहीं हो, तो फिर क्या होगा ऐसे केस में? हमारे जितना फील्ड कैंसिल हो रहा है उतना फील्ड ऐड हो रहा है और फिर आपके जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन है, सैचुरेशन आएगा. सैचुरेट होगा तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? आप ऐसे समझें कि जैसे आप बहुत थक गए, सैचुरेट मतलब बहुत थक गए हैं, तो अगर हमें सीढ़ी चढ़ना हो ऊपर और सीढ़ी उतरना हो तो कौन सा काम आसान है हमारे लिए? सीढ़ी चढ़ना हमें मुश्किल है अगर थक गए हैं तो, सैचुरेटेड है. उतरना आसान है. ठीक है. तो डीमैग्नेटाइजिंग विल बी मोर इफ द मशीन इज सैचुरेटेड. तो डीमैग्नेटाइजेशन आपका ज्यादा होगा इन कंपेयर टू मैग्नेटाइजेशन. तो यहाँ ट्रेलिंग पोल टिप में आपका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, लीडिंग पोल टिप में डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है. लेकिन सैचुरेट हो चुका है तो डीमैग्नेटाइजेशन आपका ज्यादा होगा कंपेयर टू मैग्नेटाइजेशन, मतलब कैंसिल ज्यादा करेगा कंपेयर टू ये ऐड. तो उसमें क्या होगा, जब कैंसिल ज्यादा हो गया तो जो फाइनल डिस्टॉर्टेड आपका जो मेन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह का हो जाएगा?
तो फाइनली आपका जो मेन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसा। ये ठीक है, एक पोल टिप में आपका सपोर्ट हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो गया इससे कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये फाइनल आपका जो है फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन के बाद। तो अब आपका एमएनए क्या हो जाएगा? एमएनए आपको मालूम है कि मेन फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो एमएनए आपका शिफ्ट होके कुछ ऐसे हो गया। तो कुछ एमएनए जो है आपका वो थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया। अब ब्रशेस हम चाहते हैं कि एमएनए पे ही लगाएं, ठीक है, फॉर स्पार्कलेस करेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम अपना ब्रश जो है वो प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब जब ब्रशेस हमने यहाँ प्लेस कर दिए तो फिर देखेंगे कि आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी और फिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट बनते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है कि सिर्फ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ आर्मेचर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने दोनों को साथ में लगाया। ठीक है, और ये फाइनल जो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म होगा कैसे होगा, सैचुरेशन कंसीडर किया हमने तब। ओके, अब देखते हैं ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स का कैसा डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हमने ब्रशेस यहाँ पे प्लेस कर दिए यहाँ पे, तो अभी ये आपका फेजर डायग्राम अगर हम बनाएं, सपोज ये हमारा मेन फील्ड और ये आपका अभी डायरेक्शन हो गया आर्मेचर फ्लक्स का। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर ये हमारा होगा फाई डी, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आपका इधर होगा दैट विल बी योर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड एक होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मेन फील्ड फ्लक्स को थोड़ा सा वीकेंड करेगा, कम करेगा, तो फाइनल कुछ रिड्यूस होके फ्लक्स ये हो जाएगा अगर रिजल्टिंग लें, रिजल्टिंग इन दोनों का। और फिर जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा कैसे, ये जो हमें दिख रहा है जैसा आप ये दिख रहा है, ये हमारा फाइनल फ्लक्स होगा। ठीक है, अभी इसको हम वेव फॉर्म से भी समझेंगे। तो इस तरह का है, दो इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इफेक्ट की बात करें अगर हम अब ओवरऑल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो पहला तो टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस होगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, और स्पार्किंग होगी, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज होगी। फर्स्ट पॉइंट ये, एक और नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो दोनों तो हमारे दिमाग में है। एफिशिएंसी डिक्रीज होगी क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी एक पोल टिप में आपका फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, एडअप हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपके मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो कोर लॉसेस बढ़ेंगे, कोर लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी आपका रिड्यूस होगी। कोर लॉसेस बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट एक और इफेक्ट क्या आ सकता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्यों? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, स्पार्किंग होगा, ब्रशेस बार बार जलेंगे, बार बार कार्बनाइज होंगे, तो वहाँ में मेंटेनेंस और रिपेयर कंटिन्यूस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट इफेक्ट होगा कि आपको एडिशनल कुछ डिजाइन कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। डिजाइन कॉस्ट की बढ़ जाएगी क्यों? पहला तो एक कि हमको मालूम है कि आर्मेचर फील्ड का इफेक्ट होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि हमारा मेन फील्ड फ्लक्स है वो थोड़ा और मजबूत रहे। ठीक है, तो हम उसके वाइंडिंग्स टर्न्स बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे जिससे हम उसको कंपनसेट करने के लिए पहले से जो है तैयार रहेंगे। और दूसरा कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ मेथड्स हम फॉलो करेंगे, तो कुछ डिज़ाइन में अपने जो है चेंज करेंगे, तो उससे भी हमारा डिज़ाइन कॉस्ट बढ़नी है। तो एक आपका ये इफेक्ट है, ये डिसएडवांटेज है आर्मेचर रिएक्शन का। ओके, एक है कि ब्रशेस अगर हमारी शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि आपका फ्लक्स तो डिस्टॉर्टेड हो गया, ब्रश अगर हम वो थीटा से शिफ्ट नहीं करते तो स्पार्किंग होती, तो इसलिए हम ब्रश को
शिफ्ट करते हैं थीटा एंगल से, ताकि कम्यूटेशन हमारा सही रहे, कम्यूटेशन फेलर ना हो। लेकिन ये भी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, पहले यूज़ होता था, बट ब्रशेस शिफ्ट करना, क्योंकि लोड अगर वेरिएबल है, करंट के प्रोपोर्शनल है आर्मेचर फ्लक्स, तो वेरिएबल लोड है तो ये भी वेरिएबल होगा थीटा एंगल आपका जो है, फिर ब्रश को उस हिसाब से मूव करना उतना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम कम्यूटेशन अपना जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए और भी मेथड्स है वो करेंगे, कम्यूटेशन पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अब बात करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न कौन से हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिडक्शन का मैंने एक मेथड है हमारा पोल चैम्फरिंग। ठीक है, पोल चैम्फरिंग क्या होता है, जैसे ये है, इसका पोल का जो डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे कि जो पोल टिप्स हैं उसमें आपका एयर गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, रिलक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कोर लॉसेस कम हो जाएंगे, वो हम वहाँ से वो यूज़ करते हैं कई बार। पोल स्टैकिंग क्या होता है, लैमिनेटेड पोल होते हैं, उसका प्रोजेक्शन अल्टरनेट प्रोजेक्शन होता है। तो लैमिनेटेड पोल है, अल्टरनेट प्रोजेक्शन है, अगेन हम इसको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एयर गैप बढ़ेगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कम होगी और कोर लॉसेस कम होगी। एक आता है आपका स्लॉटिंग, स्लॉटिंग द पोल, उसमें क्या होता है, हम स्लॉट्स कर देते हैं पोल में, ठीक है, और उससे भी वही काम होता है, एयर गैप बढ़ता है, फ्लक्स डेंसिटी कम होता है, तीनों लगभग एक ही जैसे हैं। एक हम डिस्कस करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये जनरली जहाँ वेरिएबल लोड होते हैं, लार्ज रेटिंग मशीन होती है, वहाँ हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाला डिज़ाइन अडॉप्ट करते हैं। स्मॉल मशीन में ये उतना इकोनॉमिकल नहीं होगा, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हम एक एडिशनल एक खर्चा करेंगे, और जितना उस मशीन की रेटिंग है उसकी उतनी वो नहीं है, तो इसलिए लार्ज में रेटिंग मशीन होगा जहाँ वेरिएबल लोड होंगे, वहाँ हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग डिज़ाइन अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग मतलब कि हम क्या करेंगे, एक स्लॉट्स बना लेंगे पोल में इस तरह से। ठीक है, स्लॉट्स में कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस तरह से बॉन्ड होगी। ठीक है, अब बस ध्यान देंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह की हो कि जो उसके करस्पॉन्डिंग आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन है, उसको वो न्यूट्रलाइज करना है, एमएफ को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो, तो क्रॉस है तो इसकी डॉट होगी। ठीक है, ये इस तरह से होंगे। अच्छा, वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये है हमारा नंबर ऑफ टर्न, दैट इज कम्यूटेशन कंडक्टर, ये दिस कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंडक्टर बाय 2 इनटू करंट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो हमारी करंट है, ये जेड बाय 2, ये हमारा आर्मेचर का कंडक्ट नंबर ऑफ टर्न इनटू एमएफ न्यूट्रलाइज करना है, इक्वल करना है, और एम आर्मेचर का करंट हम लिखते हैं करंट पर पैरेलल पाथ आइए बाई ए। तो यहाँ से हमारा जेड सी जो है वो आ गया आपका जेड बाई ए। ठीक है, अब ये जेड सी को एक इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि जो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा रहे हैं, हम सिर्फ पोल आर्क तक में ही लगा रहे हैं, यहाँ तक पूरे में तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इस पे एक फैक्टर भी इफेक्ट करेगा, वो फैक्टर है हमारा पोल आर्क पर पोल पिच। दिस इज योर पोल आर्क एंड दिस इज योर पोल पिच। ठीक है, तो पोल आर्क पर पोल पिच भी एक फैक्टर कंसिडर करेंगे, वो 0.7 जनरली हम लेते हैं, क्योंकि मेन फील्ड अगर 0.7 ना हो, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्टरनेट होगा, रेक्टिफाई करने पे ऊपर हो गया, डीसी हो गया, ये मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिपोजाइडल। तो ये जो आपका फ्लैटन हुआ है, 70% फ्लैटन है इधर से, वो इसकी वजह से है पोल आर्क पर पोल पिच। अगर ये पोल आर्क पर पोल पिच ये रेशियो 1 हो जाए, यूनिटी, तो ये आपका पूरा कंप्लीट डीसी हो जाता, स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म हो जाता, और फिर जब आप डीसी में रेक्टिफाई करते हो तो आपको कांस्टेंट एक वेवफॉर्म मिलती। ठीक है, तो पोल आर्क पर पोल पिच का रोल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपने डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पे। तो आपको दिख रहा है जब ब्रश शिफ्ट हो गया, हमारा एमएनए शिफ्ट हो चुका है, ये अभी एमएनए हो गया है। तो अभी ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है बीच में, ये और इधर 2 थीटा एंगल के, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। क्यों, इनका कैसा डायरेक्शन होगा फ्लक्स का, इस तरह से। ठीक है, ये आपके डीमैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो इधर इतने और इतने इधर, इतने जो कंडक्टर होंगे वो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, बाकी जो बचे वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें, एम्पियर टर्न पर पोल और डीमैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर एम्पियर टर्न कैसे डिसाइड करें, एम्पियर टर्न लिखना है, ठीक है। बट पूरे पेरिफेरल में 2 थीटा इधर और 2 थीटा इधर, तो 4 थीटा एम पूरे 360 में 4 थीटा एम जो है, 4 थीटा एम जो एंगल है उसके अंडर में जो कंडक्टर आ रहे हैं वही हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 थीटा एम डिवाइड बाई 360, ठीक है, इनटू एम्पियर टर्न लिखना है। तो एम्पियर मतलब करंट, दैट इज आई ए बाई ए, करंट पर पैरेलल पाथ, टर्न तो हमारा जेड बाई 2, पर पोल लिखना है इसलिए पर पोल लिख रहे थे इसलिए बाई पी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ किसके लिए, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, ठीक है। तो कभी कंपनसेट करना होगा हमको डीमैग्नेटाइजिंग के लिए, तो कितना वाइंडिंग हमें लगाना है, ठीक है, शंट में, या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए कितना वाइंडिंग लगाना है, इसको कंपनसेट करने के लिए, ये सब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अच्छा, और टोटल कितने होंगे एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न पर पोल टोटल की बात करें तो सिंपल है हमारा कि करंट आई ए बाई ए इंटू जेड बाई 2 पर पोल की बात करें तो, ठीक है। तो ये हमारा टोटल है, तो टोटल ये है, डीमैग्नेटाइजिंग ये है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की बात करेगा हमसे पर पोल, तो हम लिख लेंगे कि विल बी इक्वल टू टोटल पर पोल माइनस डीमैग्नेटाइजिंग टर्न पर पोल, ठीक। तो इस तरह से हम अपना, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं छोटे छोटे, आपके कॉम्पिटिशन में भी आते हैं कि सारी वैल्यूज कुछ कुछ दी होंगी और आपको डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर रखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया। कई बार हम याद करते हैं, याद करने में भूल जाते हैं, करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट हुआ तो ये जो 2 थीटा एंगल पर रहेगा, इसके इन्फ्लुएंस में जो भी रहेंगे कंडक्टर, वही हमारा डीमैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और तो फिर कितना हुआ 2 थीटा, 4 थीटा टोटल है 360 में, 4 थीटा, और फिर एम्पियर और टर्न, एम्पियर होता है करंट पर पैरेलल पाथ, टर्न जेड बाई 2, कंडक्टर बाई 2, और पर पोल लिख रहे हैं तो इसलिए पी, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे वेवफॉर्म की, ठीक है। तो ये हमने बना लिया अपना एक साउथ, आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, ब्रशेस बीच में, ये डायरेक्शन दिखा दी करंट की। तो मेन फील्ड फ्लक्स का हमने भी डिस्कस किया था, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म होगा इस तरह से, जीरो क्रॉसिंग होगी ब्रशेस पे, ठीक है। तभी हम यहाँ पे जीरो होता है एमएफ इंड्यूस्ड आपका, ब्रशेस फ्लक्स जीरो जहाँ पे एमएनए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ब्रशेस लगे होंगे। फिर क्या हुआ, अब बात की आर्मेचर एमएफ की, ये आपका आर्मेचर एमएफ है दिस वन। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ब्रश के पास बिटवीन द पोल कंसंट्रेट हो रहा है, तो इट विल बी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, पीक टुवर्ड्स या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रश एंड, इस तरह से। और ये हमेशा आपको मालूम है, पिछले डायग्राम्स में भी देखा हमने कि आर्मेचर फ्लक्स वाज इन क्वाड्रेचर विद द मेन फील्ड फ्लक्स। तो ये जहाँ पे हमारा मैक्सिमा आ रहा है वहाँ पे ये देखें आप जीरो क्रॉसिंग है आर्मेचर एमएफ की। तो इस तरह से हमें आर्मेचर एमएफ ड्रॉ किया। आर्मेचर फ्लक्स भी एमएफ को फॉलो करेगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे पोल्स खत्म हो रहे हैं, दोनों पोल के बीच में जो एयर गैप वाला प्लेस है, वहाँ क्या होगा, एयर गैप की वजह से रिलक्टेंस ज़्यादा हो गया, रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्लक्स हमारा थोड़ा सा वहाँ पर डीप आएगा, तो इसलिए यहाँ पे डीप आ गया, ठीक है। और फिर फ्लक्स उसी तरह से, ठीक। अब ये जो मेन फील्ड फ्लक्स है, दिस येलो वन एंड दिस वाइट वन, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ आर्मेचर एक्शन में और हमें इस टाइप की पी की वेवफॉर्म कुछ मिली। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इसको जीरो हो जाना चाहिए था मैंने पे, वहाँ जीरो ना होकर वो कुछ बाद में, वहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू है, तो कुछ डिस्टॉर्टेड पी की टाइप का या ट्रायंगुलर वेवफॉर्म हमको फाइनल जो फ्लक्स है डिस्ट्रीब्यूशन वो मिला। तो इसमें कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं आपके सीधे सीधे वेवफॉर्म पे
कि मेन फील्ड फ्लक्स की वेव फॉर्म कैसी होती है, आर्मेचर एमएफ की, आर्मेचर फ्लक्स की। तो मेन फील्ड फ्लक्स की हमारे ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। आर्मेचर एमएफ की ट्रायंगुलर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रशेस, जो हमने देखा। फ्लक्स जो है आर्मेचर फ्लक्स, उसकी हमारी सैडल है, अगर सैडल ऑप्शन में रहा तो सैडल, अदरवाइज ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं। और जो फाइनल आपके रिजल्टिंग फील्ड है उसकी पी की वेव फॉर्म होगी या फिर ट्रायंगुलर। पी की है तो पी की हम ऑप्शन टिक करेंगे, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर, और पी की ट्रायंगुलर है तो पी की ट्रायंगुलर भी। ओके, सो ये हमारा वेव फॉर्म की बात हुई। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आ जाता है वो है कम्यूटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज कम्यूटेशन? कम्यूटेशन इज नथिंग बट इट्स अ रिवर्सल ऑफ करंट इन शॉर्ट सर्किटेड कॉइल, ठीक है। देयर इज अ time called commutation time, it is a period. What this commutation period is it's a time for a brush to remain in contact with one segment. So it's a time for a brush to remain in contact with one segment. तो ये जो टाइम है कम्यूटेशन टाइम TC, इस पीरियड में अगर हमारा जो शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग है जिसमें करंट रिवर्सल होना है, उसमें अगर पूरा करंट रिवर्स हो गया इस पर्टिकुलर टाइम में, कौन से टाइम में? TC। TC मतलब क्या कि टाइम फॉर अ ब्रश टू रिमेन इन कांटेक्ट विद वन सेगमेंट। तो इस टाइम में अगर करंट रिवर्सल पूरा हो गया देन आवर कम्यूटेशन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज कम्यूटेशन नॉट सक्सेसफुल, स्पार्किंग विल बी देयर। ओके, सो कुछ डायग्राम से हम इसको समझते हैं। टाइम क्या है? वो TC जिसकी बात कर रहे थे, ब्रश जैसे एक कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट है, सपोज ABC, ये कॉइल से, ये ए कॉइल है जो हमारा शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल है, ये अंडरगोइंग कंपटीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक पूरा चला जाएगा तो आपका TC पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड, कंपटीशन टाइम, ठीक। एक सेगमेंट में रहने का टाइम है वो। उस पूरे पीरियड में अगर हमारा करंट कंप्लीट रिवर्सल हो गया शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल में, इस कॉइल में, तो इसका मतलब कंपटीशन सक्सेसफुल है, अदरवाइज कंपटीशन फेल है। चलो, ये पहला डायग्राम है। यहाँ पे 20 एम्पीयर सपोज इधर से आ रही है, 20 एम्पीयर इधर से आ रही है, तो इधर कोई शॉर्ट सर्किटिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, तो दोनों इसमें से निकल के 40 कंप्लीट प्रोसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड डायग्राम में क्या किया हमने, 25% बी की तरफ शिफ्ट कर दिया, 25% टुवर्ड्स सेगमेंट बी, ठीक है। तो 25% बी में आ गया, तो यहाँ से जब करंट 20 आ रही थी, तो जब यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया इधर भी सेगमेंट, तो यहाँ से थोड़ा सा 10 एम्पियर इधर आ गई, अब इधर गई सिर्फ 10 एम्पियर, आगे उधर से 20 आ रही है, 30 इधर है, 10, 30, 40 कलेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी मतलब आपका 1/4 ऑफ TC, जो आपका टोटल टाइम पीरियड है कम्यूटेशन का, उसका 1/4 टाइम अभी हुआ है। हाफ टाइम में क्या होगा, ये ब्रश हमारा आधा सेगमेंट बी तक आ गया है, उसमें क्या होगा, अब ये 20, अब पूरा ये जो ए है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, 20 यहाँ से सीधे बाईपास हो जाएगी, ये 20 यहाँ से, इसमें करंट 0, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, अब 75% हम बी पे आ गए हैं, तो इसका मतलब अब मेजोरिटी हम इधर शॉर्ट सर्किट बी पे ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो 20 आ रही है उसमें से कुछ करंट 10 इधर आ गई, 10 इधर आ गई, और इधर से पूरा 20, 40 कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया यहाँ टाइम पीरियड TC, पूरे 20 पे आ गया, पूरे 20 पे आ गया, तो 20 एम्पियर आपका इधर से पूरा कंप्लीट इधर आ गया, 20 इधर और 40 कलेक्ट कर लिए। तो आपने देखा क्या कि ब्रश मूव हुआ A से B तक आते आते, ये जो कॉइल थी A, इसमें करंट 20 एम्पियर ऐसे थे पहले, फिर 10 एम्पियर हुई, फिर 0 हो गया, फिर 10 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर 20 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में, तो +20 से -20 हो गया वो टाइम TC के अंदर ही। अगर ये कंप्लीट ऐसा हो गया तब तो कम्यूटेशन आपका सक्सेसफुल है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, आपको ये भी पता है कि ये जो कॉइल हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें, तो इंडक्टर हैज एबिलिटी टू अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट, ओके। तो सडन चेंज ऑफ करंट इंडक्टर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका सडन चेंज हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट चेंज हो गया, जब ये आपका TC कंप्लीट हो गया, तो उतना ना होके कुछ चीज़ें यहाँ से जंप करेंगी, पूरा 20 इधर ना जाके तो जंप करेगा, उसी को हम बोलेंगे हमारा कम्यूटेशन। फिर किसकी वजह से होगा,
तो जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप करता है इंडक्टेंस आपका, जिससे वो सडन चेंज ऑफ करंट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसकी वजह से नेक्स्ट में देखेंगे। तो अगर ये पूरे कम्यूटेशन टाइम में हमारा प्लस आई से माइनस आई हो जाता तो सक्सेसफुल था, बट रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से क्या हुआ कि कुछ 15 एम्पियर तो आया, 5 एम्पियर कुछ यहाँ से भी बाईपास हो गया, और वही जो है एयर गैप के थ्रू जंप किया, और वही हमको स्पार्किंग के टर्म्स में मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारा कम्यूटेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। कैसे रिमूव करेंगे? पहला मेथड तो था कि ब्रश शिफ्टिंग वाला पहले यूज करते थे, ठीक है। एक हमारे पास है रेजिस्टेंस मेथड। रेजिस्टेंस मेथड और कम्यूटेशन सक्सेसफुल करने के लिए, कम्यूटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमारा एक है रेजिस्टेंस मेथड। तो रेजिस्टेंस मेथड में क्या है कि जो ब्रश लगा रहे हैं हम, वो हम हाई रेजिस्टेंस का यूज करें। अगर ये ब्रश हमारा हाई रेजिस्टेंस का हो तो ये अपोज करेगा, जो भी यहाँ करंट बाईपास हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं होने देगा। यहाँ हाई रेजिस्टेंस होगा वो आगे ही जाएगी, ठीक है। बहुत हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो जनरली हम कार्बन, ग्रेफाइट, ये सब हाई रेजिस्टेंसेस हैं, यूज कर देते हैं। अदरवाइज ये कॉपर के ब्रशेस होते हैं हमारे, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो कंपेरेटिवली हम अगर कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करें तो यहाँ पे हम कार्बन एंड ग्रेफाइट ब्रशेस यूज करेंगे। हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो करंट ये जो है आपकी बाईपास हो रही है वो नहीं होगी। एक तरीका ये है। इसमें डिसएडवांटेज भी, इसमें एडवांटेज भी है कि एक तो हाई रेजिस्टेंस है ही है, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेल्फ लुब्रिकेंट भी है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट, तो सेल्फ लुब्रिकेंट भी है, तो जो फ्रिक्शन वगैरह है ये भी बहुत कम हो जाते हैं, एलिमिनेट होते हैं इसमें। तो ये तो फायदा है हमें, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी होगा इनका डिसएडवांटेज ये होगा कि भाई जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका लॉस, ब्रश ड्रॉप जो होगा, ब्रश ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। जनरली कॉपर का हमारा जो ब्रश ड्रॉप होता है, कॉपर का ब्रश का, वो 1 वोल्ट पर ब्रश होता है, और ये कार्बन, ग्रेफाइट जो यूज़ करते हैं हम, इनका 2 वोल्ट पर ब्रश। तो जब तक स्पेसिफाई ना हो हम नेग्लेक्ट करते हैं, और स्पेसिफाई होता है एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो फिर हम ये ले लेते हैं जो भी ब्रश ड्रॉप है। तो थोड़ा सा इसमें अगर हम रेजिस्टेंस हाई यूज़ करते हैं तो ब्रश ड्रॉप या लॉसेस ज़्यादा होंगे, ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये है एक सबसे अच्छा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, हर मशीन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग उधर यूज़ कर रहे थे, तो वो हमारा सिर्फ लार्ज मशीन के लिए था, स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए वो इतना प्रैक्टिकल नहीं था, इकोनॉमिकल नहीं था बेसिकली। लेकिन इधर जो कंपटीशन है वो फ्रैक्शनल, अगर मशीन को छोड़ दें किलोवाट, तो हम लगभग सारे मशीन्स में इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंटरपोल। सो इंटरपोल इज द स्मॉल साइज ऑफ पोल बिटवीन द मेन पोल्स। These are small poles between main poles, ठीक है। अब इनकी पोलैरिटी, ये नॉर्थ साउथ, ये कैसे डिसाइड हुई? तो ये कैसे होगा कि जो करेक्ट डायरेक्शन है रोटर की, उस डायरेक्शन में जो भी लीडिंग पोल, जो भी मेन पोल होगा, नेक्स्ट जब डायरेक्शन हमारे जिधर भी है उधर नेक्स्ट जो भी फर्स्ट आपका मेन पोल होगा उसी की डायरेक्शन होगी इस इंटरपोल की। तो डायरेक्शन में हमारा साउथ है पड़ेगा पहले, तो ये साउथ हो गया। इधर से ऐसे मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ पड़ेगा, नॉर्थ हो गया बॉटम वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जो आपका कॉइल था, जो जहाँ पे अकोमोडेशन हो रहा था, उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप हुआ था, उसी की वजह से वो सडन चेंज ऑफ करंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और स्पार्किंग वजह से जंप हो रहा था करंट। उसको, उस रिएक्टेंस वोल्टेज को ही ये क्या करेगा, नलीफाई करेगा, ये काउंटर ईएमएफ जनरेट करेगा। तो इसका काम क्या है इंटरपोल का? इट विल जनरेट अ काउंटर ईएमएफ, ठीक है। काउंटर ईएमएफ जनरेट करेगा, आपका जो रिएक्टेंस वोल्टेज था एलडीआई बैटरी उसको कैंसिल करेगा। तो
एल डी आई बाई डी टी, डी आई क्या है, चेंज इन करंट, माइनस आई से आई, आई से माइनस आई, तो 2 आई हो गया वो। और कितने टाइम में करना है, टी सी कम्यूटेशन टाइम में, तो ये ठीक है, इसी को नलीफाई करना है। तो आपके कम जो ये इंटरपोल होंगे, ये हमारे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये भी बेसिकली आपके सीरीज में ही होते हैं इस तरह से, आर्मेचर के सीरीज में ही कम्यूटेशन कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगी होती है और सीरीज में ही इंटरपोल वाइंडिंग भी लगी होती है। डिफरेंस ये है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लार्ज मशीन में ही यूज़ करते हैं, इंटरपोल लगभग सारी मशीनों में यूज़ कर लेते हैं। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इसमें न्यूट्रलाइज हो रहे हैं ऑटोमेटिक, और बाकी कम्यूटेशन मेन इसका कम्यूटेशन के लिए है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अच्छा, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम देख सकते हैं अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सपोज वी हैव 4 पोल लैप वाउंड आर्मेचर running at 1500 rpm, delivers a current of 150 ampere, 64 commutator segment. The brush spans is 1.2 segment, and inductance of each armature coil is 0.05 millihenry. Calculate the reactance voltage. Calculate the reactance voltage. अच्छा, 2 टाइप के इसमें कम्यूटेशन होता है। एक आपका लीनियर कम्यूटेशन हो, तो जैसे फॉर्मूला प्रीवियस फॉर्मूला में देखा, तो अगर लीनियर कम्यूटेशन हो तो आप फॉर्मूला ये चलेगा। अगर साइनसॉइडल कम्यूटेशन हो, ये आपका लीनियर कम्यूटेशन, साइनसॉइडल अगर हो, साइनसॉइडल हो अगर, तो आपका क्या होगा, इसमें 1.11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम L 2I बाई टी सी, ठीक है। तो इसमें लीनियर कम्यूटेशन के लिए भी पूछ सकते हैं, साइनसॉइडल कम्यूटेशन के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है कि वो क्या है यार, रिएक्टेंस वोल्टेज का जो पूछा गया है हमें, वो है L 2I बाई टी सी। करंट के बारे में दिया हुआ है, इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम का कुछ पता नहीं, ठीक है। तो टाइम के लिए और क्या क्या डेटा है हमारे पास, एक है ये स्पीड इन आरपीएम, एक ये 64 कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, और एक है ये स्पैन। ओके, तो अब हमारे पास ये सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सेगमेंट मतलब एक ब्रश जो है, ब्रश है, जो भी ब्रश है वो ब्रश स्पैन वो 1.2 सेगमेंट तक है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा डिस्टेंस दिया है, ब्रश रोटेट हो रहा है तो एक पूरा डिस्टेंस दिया है, पूरा रोटेशन होगा तो ब्रश का वो डिस्टेंस दिया है कि 1.2 सेगमेंट। तो डिस्टेंस है नीचे, अगर वेलोसिटी हमको मिल जाए सेगमेंट पर सेकंड, तो सेगमेंट डिवाइड बाय सेगमेंट पर सेकंड कर देंगे तो हमको सेकंड मिल जाएगा, वही टाइम होगा, वही टाइम चाहिए हमको। सेगमेंट पर सेकंड कहाँ से मिले, स्पीड हमको पता है वो रोटेशन पर सेकंड, तो स्पीड हम इसकी अगर निकाल लें 1500 को डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा, ये रोटेशन पर मिनट में है, डिवाइड बाई 60 कर दिया, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, इससे। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक मिल जाएगा, उसका ये हो जाएगा 4 से 15, ये होगा 1600 सेगमेंट पर सेकंड, ठीक है। ये सेगमेंट पर सेकंड है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस है आपका 1.2 सेगमेंट डिवाइड बाई 1600 सेगमेंट पर सेकंड, ठीक है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपका टाइम आ जाएगा। टाइम कुछ कितना है, कैलकुलेट करेंगे, टाइम मेरे ख्याल से टाइम आपका आ रहा 7.4 इंटू 10 टू पावर -4, 7.4 या 5 जो भी है, 7.5 इंटू 10 टू पावर -4, ये आपका सेकंड हो गया टाइम, ठीक है। टाइम आ गया तो बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो ई आर आपका क्या हो जाएगा
एल एल है आपका 0.05 इंटू 10⁻³ इंटू आई का क्या करें, आई हमको पता है क्या होगा, आई ए बाई ए, इस तरह से होता है आर्मेचर में करंट पर पैरेलल पाथ। तो आई ए आपका है 150 डिवाइड बाई ए होता है पैरेलल पाथ, लैप बाउंड है, लैप बाउंड में पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, पोल हमारा 4, तो ये हो जाएगा 150/4 और ये आपका आ जाएगा 37.5 एम्पियर। बस वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 37.5 डिवाइड बाई टाइम जो है आपका 7.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आपका कुछ आ जाएगा टोटल 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट लीनियर कम्यूटेशन, साइनसोइडल कम्यूटेशन पूछेगा तो 1.11 इंटू 5। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके आते रहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग पे भी, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एम्पियर टर्न्स पे और ये इस पे भी। तो ये कंप्लीट आपका टॉपिक हुआ आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आते हैं छोटे क्वेश्चंस आपके कम्यूटेशन में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपके डीसी जनरेटर, जितने भी जनरेटर्स हमने पढ़े टाइप्स, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, थैंक यू।